good morning to all of you. Yesterday evening, we had a wonderful discussion on financial modeling. And today, Sunday morning, we are sitting to discuss financial risk management FRM. Football is also going on. I'm sure many of you are football fans who must be awake half of the night for the purpose of watching football. But still, Sunday being a day in which there is less noise, थोड़ा सा खुल के सोचने का मौका मिलता है, थोड़ा सा विजन ब्रॉडर करने का मौका मिलता है. And we tend to look at what are we doing, what others are doing, are we on the correct path. We discuss with family, we sit down with them. I consider myself to be a part of your family, and therefore we are sitting down for the most and most important thing in your life, which is your career. For myself, let me tell you that you know that I have been teaching CA, CFA, FRM for the last 30 years. मैंने FRM को एक्टिवली टीच करना स्टॉप किया था 2017-18 से, because the other two, CA and CFA, were becoming too much and I was not able to take the load. But otherwise speaking, if I tell you मन से, and you will understand, many of you who are my students and possibly know me, that जब मैं कोई भी quantitative चीज पढ़ाता हूँ, when I teach something quantitative, okay, something involving too much of sophisticated stuff, okay, whether वो option Greeks है, whether वो volatility estimation है, whether वो derivative का strategies है, whether वो hard core quants है, whether वो fixed income का nuances है, not what is fixed income, but fixed income का, okay, duration, convexity and वो सब part. So in that case, you must have observed that I come into a different flavor and a different color altogether. So that is how I am built. I am more of a numbers person. I am less of a narrative person. Numbers, numbers, numbers मेरे ज़्यादा चढ़ा हुआ है, और narrative या stories में थोड़ा सा weak हूँ, if I judge myself. So when it comes to CFA में, if I'm teaching ESG, I am not perhaps the best person, और मेरा मेरा खुद का best नहीं निकलता है, because it becomes very qualitative. FRM is something which I love. I love because उसमें इतना ज़्यादा quants और modeling है जो कि through मन में आ जाते हैं. All of you know that we are in the post AI world, and everybody is like is afraid about what will happen. US markets have been just going up, going up, going up, going up. There is no limit to how much the US market has risen. And now the Taiwanese market, the Korean markets are doing the same thing. लगता है इतना सारा पैसा AI में गया है, such that these Meta and Alphabet and these companies which were earlier described as asset light companies, they have now become asset heavy companies. Because एक asset heavy company क्या होता है, जो massive capital expenditure करता है, और ये मेटा को, अल्फाबेट को, इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना नहीं पड़ता था. सो दे वर लाइक कैश इंजन्स, दे वर लाइक मैन्युफैक्चरिंग कैश फ्लो. ओके, एंड दैट इज व्हाई गूगल के बैलेंस शीट पे $1 ट्रिलियन से ऊपर का, $1 ट्रिलियन से ऊपर का, क्या बोलते हैं, कैश बैलेंस रहता है. But all that is supposed to change, because these companies have heavily committed investment in AI infrastructure. Okay, and that amount of investment is such high that if you know some part of macroeconomics, कि macroeconomics में हम लोग GDP बोलते हैं, C plus I plus G plus X minus M, I think सुना होगा. उसमें I वाला पार्ट इतना डोमिनेटिंग हो पा रहा है कि the US engine economy is not taking any signal of slowing down because of so much of investments in the pipeline. एंड ये सब देख के इंडियंस को क्या लगता है कि इंडिया हैज लॉस्ट द एआई रेस. ओके, एंड पर ये भी लगता है लोगों को कि अगर कुछ क्राइसिस आया, ठीक है, जैसा 2008 में आया था, तो क्या होगा. मैंने, believe me, I will acknowledge that everybody, no matter which sphere of life they belong to, your parents, you yourself, okay, people who are dipped in finance, they all feel that something big is about to come. Okay, a massive, massive crisis is about to come. Whether it will come 2026 or 2027 or 2028, we don't know, but something massive is going to happen in the financial markets.
And when that massive happens, obviously it will pain a lot. You know, those are long only investors, जो लोग केवल बाई करके रखते हैं स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, उनका हालत खराब होगा उस समय. एंड इस सब कॉन्टेक्स्ट में 2008 का याद आता है, जहां पे जायंट्स लाइक द लीमन ब्रदर्स, ओके, बियर स्टर्न्स, दे ऑल कोलैप्स्ड. नोबडी कुड इमेजिन एआईजी, जो इंडिया का एलआईसी है, तो यूएस का एआईजी, that was on the verge of collapse and it was saved by the US government. So FRM को उस context में समझना जरूरी है. Okay, financial risk management is to be understood in that context. Let me try to explain it, okay, to you in a certain manner, because I am not a slideshow person. Therefore, वेबिनार स्टार्ट होने के पहले मैं थोड़ा स्लाइड्स को दिखा रहा था, ठीक है, बिकॉज मैं स्लाइड्स चालू करूंगा तो मेरा तो होल ही है. आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, आई टीच फ्रॉम द हार्ट एंड ब्रेन, नॉट फॉलोइंग एनी स्लाइड्स. तो लेट मी शो यू some stuff as to what I'm trying to talk about. Just 1 second. So let's open the Excel. Yeah. So here I am in an open screen, and let me now discuss what I was trying to hint about. कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में जो लेते हैं, एनी डिसीजन, उसमें वी गॉट टू आस्क दीज क्वेश्चंस. व्हाट कैन गो रॉन्ग? दूसरा क्वेश्चन, हाउ बैड कैन इट गो रॉन्ग? एंड तीसरा क्वेश्चन, will the entity survive if several things go wrong at the same time? If several things go wrong at the same time. Very important. Think about it, please. Whatever you are doing in life, you are obviously taking risk. Even if you join the FRM program, there is a risk involved. Risk about the fact that dollar may appreciate, and when you want to pay $1,000, maybe dollar उस समय 95 जो आज है, उस समय 99 या 1,100 हो जाएगा. So you tend to pay higher. What can go wrong? Maybe at the time of the examination, you will fall ill, and therefore you will not sit for the best of examination. What can go wrong? उसके बाद हाउ बैड इट कैन गो रॉन्ग, कितना खराब, डॉलर कहाँ जा सकता है 95 से, कैन इट गो टू 100 और 105 और 110? विल द एंटिटी सर्वाइव इफ सेवरल थिंग्स गो रॉन्ग एट द सेम टाइम? कोई एक चीज गड़बड़ होता पर एक साथ सारा चीज गड़बड़ हो गया, तो विल द एंटिटी सर्वाइव? नाउ दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट एफआरएम ट्राइज टू आंसर. एफआरएम इसके पीछे पड़ा हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू identify things which can go wrong. That's identification of risk. We are going to quantify and model the risk, यानी measure करेंगे risk को, ठीक है, and we are going to then manage the risk. लिखो please. Identification of risk, quantification of risk, management of risk. This is the core of FRM. Of course, management के अंदर बहुत सारे aspects है, and how much capital the entity is sitting with. I don't know whether you have learned the phrase or heard the phrase too big to fail. Too big to fail. Let me watch the chat. कितने लोगों ने ये क्या बोलते हैं, सुना है टू बिग टू फेल? मैं चैट देख रहा हूं आपकी. टू बिग टू फेल, किसने सुना है ये सब? एवरीबडी सेइंग यस, ब्यूटीफुल. प्रसन्नजीत, मौसम, अजीत जैन, सोहम मित्तल, विकास कुमार. Now, too big to fail is the acronym, is the term that is used for the globally systemically important financial institutions. Okay, जो बड़े financial institutions हैं, they are considered to be too big to fail. That means they are so big that they cannot allow to fail. It is not a question that अगर एक black swan event हो गया, of course the movie was there, अगर एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया, ब्लैक स्वॉन इवेंट, तो उस केस में सा अगर ऐसा इवेंट हो गया तो क्या करेंगे? तब तो एचडीएफसी बंद हो जाएगा, एसबीआई बंद हो जाएगा इंडिया में. इट कैन नॉट बी. वी कैन नॉट इमेजिन अ सिचुएशन वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शट्स डाउन, वे एलआईसी शट्स डाउन, वे एचडीएफसी बैंक शट्स डाउन, ओके, वे मॉर्गन स्टैनली शट्स डाउन, वे जेपी मॉर्गन शट्स डाउन. इट्स इम्पॉसिबल. तो इसका मतलब वो जो थर्ड क्वेश्चन था, विल द एंटिटी सर्वाइव इफ सेवरल थिंग्स गो रॉन्ग?
Just think about that question. Will the entity survive if several things go wrong? इसके लिए we carry out stress testing. जो लास्ट वाला पार्ट है उसके लिए we carry out stress testing. स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब मान लेते हैं एग्जाम के दिन तुम्हारे फैमिली में कोई तुम्हारे फैमिली में किसी के फैमिली में सपोज कुछ बहुत क्लोज वाले पर्सन का डेथ हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, कर्फ्यू लग जाएगा, सेंटर जा नहीं पाओगे, ठीक है? तो मतलब ए टू जेड सारी चीज खराब खराब हो जाएगी. वुड यू बी एबल टू स्टिल सिट फॉर द एग्जाम एंड पास द एग्जाम? ओके, विल द एंटिटी सर्वाइव इफ सेवरल थिंग्स गो रॉन्ग एट द सेम टाइम? अभी नीट का एग्जामिनेशन का जो इश्यू हुआ उसमें वी हियर अबाउट द फैक्ट दैट आई थिंक 3 or 4 पीपल कमिटेड सुसाइड. So what is FRM all about is that FRM is financial risk management. So it's focusing on financial risks and it's hinting at financial institutions. When we talk about financial institutions, we are talking about commercial banks. We are talking about investment banks. We are talking about commercial banks. We are talking about investment banks. We are talking about pension funds. We are talking about insurance companies. We are talking about rating agencies. We are talking about sovereign wealth funds. We are talking about endowments and foundations. Okay, now these institutions, they are sitting on a pile of financial risk. They are sitting on a pile of financial risk. When I say financial risk, I mean to say, लिखो अलग से, market risk, credit risk, operational risk, liquidity and treasury risk. Have a look at this. Market risk, credit risk, operational risk, liquidity and treasury risk. Since मैंने words लिखे हैं तो मैं आपसे इनका मतलब पूछ रहा हूं, बताना. There is a particular bank which is very active in the housing market and उसके balance sheet में asset side में we have 40,000 crore का housing loan given. 40,000 crore का housing loan दिया हुआ है. तो in that case it is sitting on majorly which risk? Market or credit or operational or liquidity? 40,000 crore का हाउसिंग लोन दिया हुआ है. इट इज सिटिंग ऑन विच मेजर रिस्क? मेजर पार्ट कर रहे हैं, रिस्क ओवरलैप भी होता है बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर. अगर हाउसिंग फाइनेंस लोन दिया हुआ है तो विच इज द मेन रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट? ओके, द मेन रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑब्वियसली क्रेडिट रिस्क. द मेन रिस्क मैंने बोला था, द मेन रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट इज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. Okay, it is the credit risk. Of course, we can talk about किसा उसमें other risk dimensions भी है. Okay, risk of default, risk of downgrade, risk of default, risk of downgrade. तो in that case, ऊपर में जो institutions लिखे हुए थे, commercial banks, investment banks, pension fund, insurance companies, rating agencies, sovereign wealth fund, endowments and foundations, उनमें से किसके साथ आप सबसे ज्यादा associate कर पा रहे हो credit risk? Credit risk you are able to associate with which particular institution at the top? सबसे ज्यादा बोल रहा हूं, you are able to associate with which institution at the top? Of course commercial banks, because commercial banks का asset side of the balance sheet is total lending portfolio. ठीक है, so they are exposed to the risk of default. Of course investment banks are also, investment banks are investing in bonds. Okay, the investment banks are investing in bonds, pension funds are investing in bonds, and obviously bonds can default. So I'm not saying that the others are not exposed to credit risk. Okay, and out of these agencies, out of these institutions ऊपर में, which is the institution, why are you marking, which is the institution which will be providing an assessment of the credit risk? इन सब में से which is the institution which is providing to the public an assessment of credit risk? कौन सा institution है जो लोगों को आइडिया दे रहा है credit risk क्या है? Show the chat. कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को आइडिया दे रहा है कि क्रेडिट रिस्क क्या है? रेटिंग एजेंसीज. बट हैव दे डन अ गुड जॉब? हैव द रेटिंग एजेंसीज डन अ गुड जॉब? द लाइक्स ऑफ S&P, Moody's, have they done a good job? No, they have lagged, they have failed. Okay, it's an oligopoly industry, okay, where they are earning big fat fees, but whenever the crisis happens they are not the ones who give the indication. They are the ones जो पुलिस लास्ट में आती है, पुराना हिंदी मूवीज जब सब कुछ हो जाता है तो in that case we are discussing about that part.
there is a big portfolio of stocks and bonds that you are carrying with derivatives. There is a big portfolio of stocks and bonds and derivatives that you are carrying. What is the main risk you are exposed to? There is a big portfolio of stocks and bonds and derivatives that you are carrying. What is the main risk that you are exposed to? Obviously, everybody has answered correctly. The main risk that you are exposed to, please. The main risk you are exposed to is market risk. So market risk refers to the risk that arises due to the fluctuation in stock prices, interest rate, exchange rate, commodity prices, and so on. Okay, that's market risk. इसका stock prices, interest rate, exchange rate, commodity prices, इन सब में change होने से जो impact होगा, that is market risk. But sir, derivatives तो over the counter भी होता है जो counter party से, और counter party failure हो सकता है. What is that? Credit risk. That is credit risk. Counter party failure हो सकता है. That is also credit risk. Anybody who is holding bond, he is exposed to credit risk as well as market risk. ठीक है. द फैक्ट दैट कोई भी इंस्टीट्यूशन में देयर कैन बी फेलियर ऑफ पीपल प्रोसेस एंड सिस्टम्स. कोई फ्रॉड हो सकता है. ठीक है. कोई टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है. सॉफ्टवेयर डाउन हो सकता है. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑपरेशनल रिस्क. दैट इज ऑपरेशनल रिस्क. ओके. द रिस्क ऑफ शट डाउन इन द सिस्टम, इन द हार्डवेयर, इन द सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑपरेशनल रिस्क. फ्रॉड का रिस्क ऑपरेशनल रिस्क. पीपल का रिस्क ऑपरेशनल रिस्क. And the risk that you will be stuck up in your position. You will not be able to sell because market में liquidity नहीं है. You will not be able to sell because market में liquidity नहीं है. What is that risk? Liquidity and treasury risk. That's about the fact that either the company is not able to fund itself or the company is not able to liquidate its positions. That is the liquidity risk. So these are the risks which are in the financial domain, and FRM is specializing upon these risks. Let us understand clearly. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Let me explain that. This is very very important for you to understand that. मैं stop share कर रहा हूं. The world is perfect or imperfect? Yes, please. The world is perfect or imperfect? What would you say? Everybody knows that the world is imperfect. The world is imperfect. The world is not perfect. Somebody said perfect. एकदम गड़बड़. The world is imperfect. And people who come from the mathematical or the science domain, people from the MITs or the IITs, people who are doing physics at Stanford, at Harvard, at Cornell. Now, these people, when they come to the financial markets and they design models for the purpose of capturing all these risks, they create credit risk models, market risk models, liquidity risk models, create करते हैं. Now, these people, they are suffering from the problem of perfection because they are mathematicians. ये लोग perfect ideal model बना देते हैं, and these models are bound to fail in the imperfect world. They are bound to fail. Big institutions have understood this. I don't know if you follow me, but otherwise मेरे social media पे I had around 15 days ago shared a pic, a restaurant pic with Sumer Bajaj. Okay, Sumer Bajaj के साथ I was sitting in New York City, just beside the Morgan Stanley headquarters in a restaurant called the Junior Restaurant. And this Sumer Bajaj is the vice president. Sorry, Sumer Bajaj is the executive director of the risk management, of the global risk management division of Morgan Stanley. He is the executive director of the global risk management division of Morgan Stanley. But who is this Sumer Bajaj? He is a BCom graduate from Bhawanipur College in Calcutta. He is a BCom graduate from Bhawanipur College in Calcutta. Please imagine एक बार, ये जो भवानीपुर कॉलेज जिसको हम लोग बग्गू बोलते हैं, उसका लड़का, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट में, और उसके अंडर सारे MITs और IITs और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स वगैरह काम कर रहे हैं, जो लोग भर भर के एक ही चीज जानते हैं, मैथ्स मैथ्स एंड मैथ्स. आई हैव द डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर कोडर्स. I have the deepest respect for people जो लोग Python जानते हैं. I have the deepest respect for mathematicians. But the problem with these people is that they are too perfect and they do not create models which will work in the imperfect world.
And therefore, what does these institutions do? These institutions make Sumer Bajaj sit at the helm of affairs कि यार ये बंदा कॉमन सेंस जानता है। तो जो लोग भी अपने लोग हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएफए कर रहे हैं, केवल बीकॉम कर रहे हैं, दीज पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू मॉडलिंग, you may not be the best of person knowing Python and coding and all that stuff, but you are the person who are preferred because you have something called imperfection. Imperfection has become the trait, okay, which will save the world from big massacres. Okay, of course we require the perfection of those IITians, of those MIT guys, but they are the ones who work under the imperfect people. So, what would you like to become? Would you like to become a coder? Would you like to become a Python person जो केवल कोड लिखता रहे, equations को मैच करता रहे? Or would you like to be a generalist? Okay, a person who understands common sense and who would teach the coders कि भाई इतना perfect model नहीं चाहिए, इसमें कोई error term छोड़ो. I don't know if you have watched the movie. If you have watched the movie Matrix, आपने Matrix movie watch की है? Have you watched the movie Matrix? पक्का से वॉच करना मैट्रिक्स में। ओके, तो मैट्रिक्स मूवी में सब जन यस बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग यस। तो मैट्रिक्स आज ही वॉच करना। आई थिंक amazon प्राइम पे है, इट्स वर्थ वॉचिंग। उसमें मैट्रिक्स कब आया था? आई थिंक 2005 करीब का आया हुआ मूवी होगा। और उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक फॉर्म का बात मैट्रिक्स में किया था, वेर अ parallel world was created with the help of artificial intelligence and machines had taken over the world. And वहां पे still there was a bug in the model, and the bug was because the model was too perfect. They had to send an error term into the model so that the imperfection can be captured. So please, please, people, all those commerce students, all those BCom, BBAs, CAs, CAWIP, CAWIP समझ गए? जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे थे, या तो इंटर के स्टेज पे एक ग्रुप छोड़ दिए, या सीए फाइनल में एक ग्रुप छोड़ दिए, वो सारे के सारे लोगों को अगर एक डिग्री चाहिए जो सॉलिड हो, जो उनको वर्ल्ड के टॉप में पहुंचा सकता है, दैट डिग्री इज एफआरएम। ठीक है? मतलब ऐसा होता है कि देर आर पीपल हु कम टू माय ऑफिस एवरी डे, सर मैंने आपको 2014 में सीए किया था, सीए पढ़ा था सर, उस समय दे नहीं पाया, माफा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है, एंड नाउ आई एम थिंकिंग मैं क्या करूं, मेरे को डिग्री चाहिए, मैं अभी कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरे को 6.5-7 लाख मिल रहा है, बिकॉज मैंने आई एम वर्किंग देयर फॉर अराउंड 8-10 ईयर्स से काम कर रहा हूं, बट सर द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग मी इज डिग्री, डिग्री, डिग्री। जो लोग भी बोलते हैं ना डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके डिग्री छीन लेनी चाहिए, फिर दिखाए वो क्या हो जाएगा। दे विल फील दैट दे हैव बिकम नेकेड एंड स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर क्लोथ्स। बिलीव मी, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द डिग्री का इंपॉर्टेंस, डिग्री इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो साइकोलॉजिकली। ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ डिग्री, मैक्सिमम पीपल विल फील दैट दे आर स्ट्रिप्ड एंड नेकेड, एंड आई मीन इट बिकॉज आई हैव सीन इट सो क्लोजली। क्या डिग्री से केवल हो जाता है? नो, नॉट एट ऑल। आपको प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए, एंड देयरफॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग का कल बात हो रहा था कल सेशन में। बट डिग्री को जो नजरअंदाज कर रहा है वो बंदा देखेगा फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होगा। इट मे बी पॉसिबल दैट हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिग्री के बिना बड़े बिजनेस स्टैब्लिश कर दिए, बट पूछो अपने पेरेंट्स से, क्या वो लोग चाहेंगे कि तुम पढ़ाई नहीं करो और तुम डिग्री नहीं लो? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है? तो in that case FRM is an arbitrage opportunity. Why? Because FRM is a degree which could be taken in short term. जो लोग का सीए किया हुआ है, या सीए इंटरमीडिएट किया हुआ है, या फिर जिन लोग सीए छोड़ दिए थे, ठीक है, जिनके पास कोई कारण, मतलब कोई कारण से वो लोग 3 साल 3.5 साल कोई कोर्स में नहीं लगा सकते हैं, जिनको 1 साल 1.5 साल में डिग्री चाहिए, उनके लिए एफआरएम इज द थिंग। इट विल ब्रिंग द सनशाइन इन योर लाइफ। अंडरस्टूड? बट दोज पीपल हु हैव द 3.5 years टू गिव, जो लोग क्लास 12 पास किए हैं, आई वुड रेकमेंड देम स्ट्रांगली टू परस्यू सीएफए प्लस एफआरएम बोथ। दोनों का दोनों परस्यू करना चाहिए। सर दोनों परस्यू करना पॉसिबल है क्या? हैवी नहीं हो जाएगा? सीएफए तो खुद ही हैवी है। नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम क्या हो रहा है बता रहा हूं। जो लोग क्लास 12 पास किए और सीएफए पढ़ना चालू किए, सीएफए लेवल 1, वो लोग सीएफए दे पाते हैं 1.25 ईयर्स के बाद, 1.25 साल 1.5 साल बाद सीएफए दे पाते हैं। और सीएफए में वो टाइम चाहिए, पर ये 1.25 साल में उनका डिसओरिएंटेशन हो जाता है। प्रेशर तो रहता नहीं है, मॉक टेस्ट तो है नहीं जैसे स्कूल्स में होता था, सो दे फेल डिसओरिएंटेड। क्यूएम उनके घुसता नहीं है। ठीक है? एंड क्यूएम को घुसाने के लिए, उतारने के लिए द बेस्ट इज एफआरएम। इफ यू आर डूइंग एफआरएम along with CFA, your CFA is hedged.
If you are doing FRM along with CFA, I repeat myself, your CFA is hedged because CFA में जो भी difficult areas है, QM, quantitative methods, fixed income, derivatives, portfolio management, all these areas are covered in FRM in excruciating details. You become a champion of these areas. Okay, QM, portfolio, derivatives, ओके इन सब के आप चैंपियन बन जाते हैं. क्वांट से आप डरते नहीं हैं. जो लोग हाइपोथेसिस रिग्रेशन से कंप्लेन करते रहते हैं, दिस इज इट. जिन लोग का मन है कि सर मशीन लर्निंग ओके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो वर्ल्ड में हमें स्पेशलाइज करना है, एफआरएम इज इट. ओके, एफआरएम में जिस तरह का मॉडलिंग है वैसा मॉडलिंग स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में है. फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. पीपल थिंक अबाउट डूइंग एमबीए फ्यूचर में. व्हाई एमबीए? व्हाई कांट यू डू एन एमएफई, मास्टर्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग? कि फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में एमबीए हम मास्टर्स करेंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं करेंगे. एफआरएम यू टेक्स यू टुवर्ड्स दैट. बट सर मेरे को तो एमबीए करना है. तो यार तुम एमबीए ही कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है. बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से मास्टर्स केवल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में भी होता है, ठीक है. तो सीएफए वाले लोगों के लिए एफआरएम करने से बहुत सारे विंडोज खुलते हैं जो अदरवाइज नहीं खुलते. यू कांट एक्सपेक्ट दैट बैंक में आपको सॉलिडली एक्सेप्ट कर दिया जाएगा एज अ सीएफए चार्टर होल्डर, ठीक है. इन द क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, इन द ऑपरेशनल रिस्क डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, इट्स डिफिकल्ट फॉर अ सीएफए टू गेट इनटू. यू हैव द एफआरएम, यू आर एबल टू गेट इनटू. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक के पोजीशंस में एफआरएम रिक्वायर्ड है जहां पे सीएफए प्रेफर्ड नहीं है. प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है एफआरएम अपना इज्जत इंडिया में खोते जा रहा है. और वो इज्जत क्यों खोते जा रहा है? बिकॉज लोग एफआरएम को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं. प्रॉपरली नहीं कर रहे का मतलब सीएफए लेवल 1 या लेवल 2 हो गया, साथ में एफआरएम इनरोल किए, स्क्वाइजर के बुक्स मंगाए, उसमें प्रिपेयर कर लिए, स्क्वाइजर के बुक से मोटा मोटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, बैठ गए, पास हो गए. देख मेरा एफआरएम का डिग्री भी आ गया. तुमने कुछ भी नहीं किया मॉडल, तुम कुछ भी नहीं जानते हो और तुम बाद में यही बोलोगे दुनिया को सीएफए का अलग बात था यार, एफआरएम पता नहीं ज्यादा काम नहीं आया. दिस इज व्हाट यू विल हियर फ्रॉम पीपल हु हैव डन सीएफए एंड एफआरएम बोथ. दे विल से सीएफए अलग बात था, एफआरएम में पता नहीं ज्यादा कुछ था नहीं. बिकॉज तुमने किया कहां उसको इज्जत से. जैसे सीए वाला है, सीए वाला जब सीएफए करता है तो ज्यादातर इज्जत से करता नहीं है, इसलिए उसके सीएफए काम नहीं आते. सीए वाला एफआरएम, सीए वाला तो इंडिया में सीए वाला रिस्क मैनेजमेंट का हकदार है, वही तो ऑडिट करता है, ठीक है. रिस्क मैनेजमेंट को इंडिया में किसी का क्या बोलते हैं बर्थ राइट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है. एंड व्हाट इफ अ सीए डज एफआरएम, फाड़ देगा, बिलीव मी. ओके, बिकॉज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग एक डिसिप्लिन है. जहां पे रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग होती है वो रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग का जेनेसिस एफआरएम है. ओके, बैंक्स का रेट सेंसिटिव एसेट्स, रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, सिमुलेशन, वैल्यू एट रिस्क, अर्निंग्स एट रिस्क, कैश फ्लो एट रिस्क, ये सारा का सारा एफआरएम करिकुलम में ही तो है. और है कहां, ठीक है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट एफआरएम पढ़ाते हुए मेरा प्लस क्या है? मेरा प्लस है कि एफआरएम पढ़ाते हुए नंबर्स को मैं स्टोरी से जो लिंक करता हूं. ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, लेट मी प्रोवाइड अ हिंट ऑफ इट. एक बार एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स गो टू द एक्सेल, लेट मी एक्सप्लेन द एफआरएम का. जरा सा आपको वो दिखाते हैं, एफआरएम का टेस्ट देते हैं आपको 2 मिनट में. गो टू अ ब्लैंक एक्सेल शीट. लेट्स गो टू अ ब्लैंक एक्सेल शीट. ओके, लेट्स राइट डाउन 90-day call option, 90-day call option on Nifty, 90-day call option on Nifty at a strike price of 23,200. 90-day call option on Nifty, strike price of 23,200. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में से बहुत जन को कॉल ऑप्शन का मतलब पता होगा. किसको पता है, किसको नहीं पता है? चैट में यस नो बताइए. किसको पता है, किसको नहीं पता है? चैट में यस नो बताइए. यस प्लीज, कॉल ऑप्शन किसको पता है, किसको नहीं पता है? यस नो बताइए. ओके, 70% ऑफ द ऑडियंस सेज यस, 30% ऑफ द ऑडियंस सेज नो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं है. 2 मिनट लगता है कॉल ऑप्शन का मतलब बताने में. ओके, कॉल ऑप्शन जो है राइट साइड में, और एक शीट पे चल जाओ. एक मिनट, एक शीट में 2 मिनट लगेगा कॉल ऑप्शन बताने में. कॉल ऑप्शन, ओके, कॉल ऑप्शन इज ऊपर के लॉटरी का टिकट. कॉल ऑप्शन इज ऊपर के लॉटरी का टिकट. ऊपर के लॉटरी का टिकट किसके ऊपर के? स्ट्राइक प्राइस के ऊपर. नीचे लिखो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर,
स्ट्राइक प्राइस क्या था? 2300, 23,200। स्ट्राइक प्राइस 23,200, ये स्ट्राइक प्राइस था, ये एक बैरियर था। स्ट्राइक प्राइस 23,200। अगर 90 डेज के बाद, अगर 90 डेज के बाद, अरे हिंदी में ही लिखो ना यार, अगर 90 डेज के बाद, अगर 90 डेज के बाद निफ्टी, निफ्टी 23,200 से ऊपर गया, 2300 200 से ऊपर गया, तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, आएगा। वरना नीचे, वरना, वरना लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक देना, वरना लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक देना, फाड़ के फेंक देना। दिस इज कॉल ऑप्शन। जिनको कॉल ऑप्शन नहीं आता था, दिस द मीनिंग ऑफ कॉल ऑप्शन। ऊपर का लॉटरी का टिकट, ऊपर कैसे डिसाइड होगा? स्ट्राइक प्राइस, और निफ्टी पे कॉल ऑप्शन है, और 90 डेज मेच्योरिटी है। तो 90 डेज के बाद निफ्टी का वैल्यू अगर 23,200 के ऊपर है तो आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे 24,000 हो गया तो 800 मिलेगा, 25,000 हो गया तो 1,800 मिलेगा, और नीचे रह गया तो जीरो। लॉटरी का टिकट फाड़ के फेंक देना। तो जाहिर है लॉटरी का टिकट मुफ्त का मिलता है कि उसका पैसा लगता है? पैसा लगता है। लिखो, लॉटरी के टिकट का, लॉटरी के टिकट का आज दाम लगता है, लॉटरी के टिकट का आज दाम लगता है। उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन प्रीमियम, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन प्रीमियम, कॉल ऑप्शन प्रीमियम। तो वो मेरे को निकालना है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम मेरे को निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉल ऑप्शन प्रीमियम। लेट्स गो टू द प्रीवियस शीट। प्रीवियस शीट में गया, मैंने स्ट्राइक प्राइस लिखा 2300, 23,200। लिखो निफ्टी ब्रैकेट स्टॉक प्राइस। तो निफ्टी का दाम सपोज अभी 23,000 है, मेच्योरिटी 90 डेज, 90 दिन बाकी है। रिस्क फ्री रेट, RF, RF is suppose 7%। ओके, नाउ निफ्टी जो है वो 90 दिन बाद क्या होगा? व्हाट विल निफ्टी बी आफ्टर 90 डेज? निफ्टी इज अ रैंडम वेरिएबल। व्हाट विल इट बी आफ्टर 90 डेज? वी डोंट नो। निफ्टी 90 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, उसका एक मॉडलिंग करते हैं, उसका मॉडलिंग। ठीक है, उसका मॉडलिंग करेंगे। उसके मॉडलिंग के लिए मैं सोचो एनएससी में गया, जा रहा नहीं हूं यहां पे, मैं एनएससी की वेबसाइट पे गया और निफ्टी का डेटा निकाला, पास्ट 500 700 डेज का निफ्टी का डेटा, डेली डेटा, डेली। ओके, और डेली डेटा से रिटर्न्स निकाला, रिटर्न्स का मीन एसडी निकाला कि मीन क्या है, डेली मीन क्या है, एसडी क्या है। आरएफ के नीचे लिखो मीन, मीन, मीन रिटर्न, मीन रिटर्न, मीन रिटर्न जीरो। एसडी नीचे, एसडी, एसडी ऑफ रिटर्न्स से 1.1%, 1.1% ये डेली एसडी है। तो निफ्टी का मीन जो है वो 0% है, निफ्टी का एसडी जो है 1.1% है। एसडी माने स्टैंडर्ड डिविएशन, नाम सुना होगा। 1.1% का डेली वॉलेटिलिटी है। ये मैंने पास्ट डेटा से निकाला है, निकाला जा सकता है एनएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके, वो मैं निकाल रहा नहीं हूं नाउ। इसके हेल्प से वी विल ट्राई टू फोरकास्ट कि निफ्टी क्या होगा 90 दिन बाद। ओके, लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो अपने जाते हैं कॉलम बनाते हुए, डेज 1 2 से लेके 90 तक, 90 तक, एक से लेके 90 दिन तक निफ्टी का वैल्यू क्या होगा? या ठीक है, अब डेज के बगल में अब अपने को पाथ लगाना है, पाथ, पाथ वन, पाथ लिख दो, पाथ्स, कि निफ्टी क्या क्या रास्ता से मूव करेगा। 1 2, लेट मी शो यू ओनली 10 पाथ्स। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम शोइंग 10 पाथ्स, 10 पॉसिबल पाथ जो निफ्टी ले सकता है। ठीक है, अब हम्म, निफ्टी का शेयर का दाम एक दिन बाद क्या होगा? इक्वल टू अभी जो निफ्टी था 23,000 इंटू एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट रैंडम, रैंडम ड्रॉ करेंगे, मतलब लक पे डिपेंडेंट है, कॉमा मीन। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं और रैंडम ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम ड्रॉ की है, मीन, मीन इज 0, एस डी इज 1.1%।
तो ये निफ्टी का कल का वैल्यू आ गया, डेसिबल ठीक कर दो, हटा दो डेसिबल। ये निफ्टी का कल का पॉसिबल वैल्यू आ गया। ऐसे करके परसों वैल्यू क्या होगा, इसके हेल्प से नेक्स्ट वाला किए। नहीं नहीं नहीं, 23,000 से नहीं होगा, इसके हेल्प से, डे वन के हेल्प से। डे वन के हेल्प से डे टू का फर्स्ट वाला प्राइस को F7 फिक्स कर, हाँ। ओके, अब नीचे टान दो लाइन से। तो एक दिन के बाद सेकेंड डे का, ऐसे करके 90 डेज का पॉसिबल प्राइसेस आ गया निफ्टी का। पॉसिबल प्राइसेस निफ्टी का आ गया 90 डेज का। नेक्स्ट, ऐसा ही पाथ टू करते हैं। पाथ टू कर रहे हैं, उसके नीचे इक्वेशन दिखा दो इसका। नहीं, वो डॉलर गलत है, वो फ्रीज्ड है। यस, नीचे टान दो सारा। पहले राइट साइड का निकाल लो सारा। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टू जस्ट कंप्लीट दिस। आई नो कोई बोलेगा पूरा समझ में नहीं आया, बिकॉज पूरा क्या समझ में कैसे आएगा, बट यू विल गेट द क्रक्स व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू यू। हटा दो ना, हटा के यहां से टान लो, लेफ्ट साइड से। या, ठीक है। तो ये 10 पॉसिबल पाथ्स बन गया ऑफ व्हाट कैन हैपन ओवर द नेक्स्ट 90 डेज। 10 पॉसिबल पाथ्स ऑफ व्हाट कैन हैपन ओवर द नेक्स्ट 90 डेज। नीचे जाते हैं, एक बार नीचे जाते हैं। नीचे आए, और 90 डेज के नीचे, हाँ अब देख रहे हैं। तो इन दैट केस आप देखो, पहला वाला प्राइस 25,846 है। तो 25,846 का मतलब हुआ 23,200 से ज्यादा है। तो अगर 23,200 से ज्यादा है तो लॉटरी उड़ गया, और अपने को मिलेगा डिफरेंस। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाला भी ज्यादा है, पर इफ यू लुक एट द फोर्थ वन, 22,127, 22,127 में लॉटरी लैप्स हो गया, फाड़ के फेंकना पड़ेगा। उसके बाद वाला 22,628 लॉटरी फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपने वहां नीचे जाते हैं, 90 के नीचे। लेट्स फाइंड आउट कॉल ऑप्शन कितना देगा। कॉल ऑप्शन पे ऑफ, कॉल ऑप्शन पे ऑफ, उसका फॉर्मूला हो गया मैक्स ब्रैकेट, ये जो लास्ट पे प्राइस है, माइनस जो स्ट्राइक प्राइस था, माइनस स्ट्राइक प्राइस, कॉमा जीरो। या, ऑफ कोर्स फिगर्स चेंज होते जा रहे हैं, डोंट वरी, उसको फ्रीज कर देंगे हम लोग। तो ये अपना कॉल ऑप्शन का वैल्यू आ गया कि लॉटरी में 10 दिन बाद, 90 दिन बाद क्या मिलेगा। ठीक है ना, और ये चेंज होते जा रहा है, बट फ्रीज कर देंगे, डोंट वरी। ये सारा कॉल ऑप्शन से मिल सकता है, या तो जीरो मिलेगा, या 3725, या 2733, या जीरो, या जीरो, या जीरो, या जीरो। दीज आर द पॉसिबल पे ऑफ्स। एक बार फ्रीज कर दो ना, बेटर रहेगा। अभी फ्रीज कर दो, बिकॉज वेन द फिगर्स आर चेंजिंग द पार्टिसिपेंट्स में नॉट बी कंफर्टेबल। फ्रीज कर रहे हैं जिससे चेंज नहीं हो। बिकॉज सिम्युलेशन है, तो बिकॉज ऑफ विच वो चेंज होते जा रहा था। नाउ वी हैव फ्रोजन द स्टफ। अब उसके बाद नीचे एवरेज निकालो, ये 10 का एवरेज, लॉटरी से जो जो मिल सकता है 90 दिन बाद, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ दीज 10 पॉसिबिलिटीज। नाउ कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट 7% डिस्काउंट रेट। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, 646 डिवाइड बाय 1.09, सॉरी 1.07, जो 7% आर एफ था ना, टू द पावर 90/365, टू द पावर 90/365। या,
तो इन दैट केस 635.17 डेसिमल कम कर दो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन. ठीक है, इसका ग्राफ दिखा सकते हो क्या? कैन यू शो दिस पाथ्स एंड द ग्राफ? तो लेट अस शो यू ग्राफिकली एज टू व्हाट हैपेंस, बिकॉज वो दृश्यम मूवी देखा था ना, जिसमें ग्राफ से बेटर समझ में आते हैं. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. इफ यू लुक एट द चार्ट, 1 से लेके 90 दिन में ये जो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, दीज वे द पाथ्स. हमने 10 पाथ बनाया था केवल. तो स्टॉक का दाम कहाँ कहाँ गया? ऑरेंज वाला सबसे ऊपर गया. फिर वो दाम को 23,200 से लेस किए तो लॉटरी का पे ऑफ. कोई कोई दाम 23,200 से नीचे आया तो लॉटरी का पे ऑफ जीरो हो गया. ऐसे करके 10 पाथ नहीं बनता है. वन मेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पाथ, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस इन द मार्केट ना. मार्केट जब चल रहा है तो 90 दिनों में क्या होगा किसी को नहीं पता. तो वी मेक मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड वो मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज में वी फाइंड आउट द एंडिंग वैल्यू एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. आई नो दैट दिस कुड हैव बीन अनकॉम्प्रिहेंसिबल फॉर मेनी पीपल हु आर अटेंडिंग द सेशन. दैट्स बिकॉज ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, सिमुलेशन क्या है, वो बताए थोड़ी है. बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू दैट एफआरएम इज ऑल अबाउट दिस. एफआरएम में ये स्टफ है सर. क्या हम लोग ये कर पाएंगे? आप तो कर दिए. बायां हाथ का खेल होगा 2 मिनट में. ओके. एंड इनफैक्ट ये चीज जीपीटी कर देता, उसको बोल देते तो. ठीक है, और आप भी कर पाएंगे. तो सीएफए क्लास वर्सेस एफआरएम क्लास में डिफरेंस क्या होगा? सीएफए क्लास वर्सेस एफआरएम क्लास में डिफरेंस ये होगा, एफआरएम क्लास में अपने मॉडल पे मॉडल बनाते जाएंगे. देयर बी हैवी यूज ऑफ स्प्रेडशीट एंड एक्सेल शीट इन क्लास. ठीक है. टू मच ऑफ यूज ऑफ स्प्रेडशीट इज गोइंग टू हैपन इन क्लास in the FRM curriculum. I wanted to also tell you one thing. Okay, let me share the screen and draw and show it to you. Just 1 minute. Yeah, 1 minute. Just 1 second. Yeah. If this is a certain distribution, if this is a certain distribution, the CFA program focuses on the center of the distribution. CFA प्रोग्राम का फोकस जो है, इट इज ऑन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पे CFA का फोकस है. FRM का फोकस इज ऑन द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. FRM का फोकस इज ऑन द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. FRM का इट ट्राइज टू टॉक अबाउट एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा, डे टू डे क्या होगा वो नहीं. एक्सट्रीम केसेस में क्या होने वाला है और उसके लिए क्या करें. हाउ शुड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैनेज देयर रिस्क. You do an FRM and you are straight away welcomed in a commercial bank credit risk department, operational risk department, market risk department, और इन इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको जॉब मिलता है एफआरएम के कारण. यू गेट जॉब इन कंसल्टेंसी, यू गेट जॉब इन रेटिंग एजेंसीज, यू गेट जॉब इन इंश्योरेंस कंपनीज. You become the CRO of a company. FRM wise, you become the CRO of a company, Chief Risk Officer of a company. As a CFA, you aim to become a CIO of a company, Chief Investment Officer of a company. Okay, so one is a Chief Investment Officer, the other is a CRO of a company. FRM is a tremendous complement to CFA और CA जो लोग कर रहे हैं. एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं CFA CA और वो लोग को केवल FRM करना है, तो इन दैट केस देन ऑल्सो इट्स अ ग्रेट थिंग. देयर वाज अ स्टूडेंट, आई रिमेंबर हर नेम इज नेहा कुमटा फ्रॉम कैलकाटा. ठीक है. शी डिड हर FRM, सॉरी, शी डिड हर MS फाइनेंस विथ मी. MS फाइनेंस किया उन्होंने. उसके बाद शी डिड MBA फ्रॉम द पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑन बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. पुणे से MBA किया. देयर इज एन इंस्टीट्यूट ऑन बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. ओके. जस्ट 1 second, लेट मी पुट ऑन द लाइट. मेरा लाइट ऑन नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था. एंड नोबडी सेड एनीथिंग. सो जस्ट 1 second, लेट मी पुट ऑन द लाइट. रियली रियली सॉरी, डिडंट रियलाइज. सारे लाइट्स को ऑन करो ना. हाँ बस. काम. ओके. Yeah. So, Neha, she completed MS Finance with me in Calcutta. Then she went to do
Pune se MBA from the Banking Institute of Pune, you will find. After that, she got employed in Bank of Baroda. Bank of Baroda. She's working over there, I think for the past 7 8 years. At Bank of Baroda ने उसको बोला कि you have to do FRM. They financed FRM for her. So why would a person who has done MS Finance, Pune Institute से रिस्क मैनेजमेंट, got to do FRM? तो FRM किया उन्होंने, और उसके बाद सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग पे कोर्स किया, एंड शी इज द हेड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग की हेड है, चेक कर लेना प्लीज। गो टू बैंक ऑफ बड़ौदा। और नेहा कुमटा, आई मे बी रॉन्ग इन द स्पेलिंग ऑफ द टाइटल, बट शी इज द वन हु डिड। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ FRM इज बीइंग एक्सट्रीमली वैल्यूड बाय बैंक्स, by investment banks, by rating agencies, by insurance companies, by pension funds. Okay, these are the places in which you are able to see yourself in future. If we talk about the modalities of FRM, अगर FRM का modalities का बात करें, let me show it to you, and I will just open the Excel sheet. Just 1 second, and let me show you the modalities. Yeah. Can we show the Excel on when the examinations are, how many parts are there and stuff like that? Yeah. हैव अ लुक। FRM में दो पार्ट्स का एग्जाम है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस है, 4 आवर्स। CFA में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 2.25 आवर्स। ओके, 100 क्वेश्चंस है, 4 आवर्स। और FRM पार्ट 2 में 80 क्वेश्चंस है, 4 आवर्स। वन वुड सी फील दैट सर 4 घंटा क्यों है? बिकॉज FRM इज इंट्रिंसिकली टफ। टफ माने इट्स इजी टू पास, टफ टू प्रिपेयर। इट्स इजी टू पास, टफ टू प्रिपेयर, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज लो। बिकॉज लोग फालतू का प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए जय माता दी में या थोड़ा सा पढ़ के पास हो जाते हैं स्क्वाइजर ट्वाइजर से, बट कोई फायदा नहीं। फिर FRM मत करना। अगर उस क्वाइजर वाला पढ़ाई करना है तो FRM एकदम मत करना प्लीज, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। डोंट डू FRM। FRM करना है तो रियल मॉडल्स बिल्डिंग वाला FRM करना। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मई अगस्त नवंबर विंडो है। तो फॉर एग्जांपल समबडी हु इज प्लानिंग, अभी जो क्लास 12 दिया है, अभी CFA L1 ज्वाइन किया है, वो सोच रहा है नेक्स्ट अगस्त या नवंबर में मैं CFA L1 दूंगा। इट इज बेस्ट टू अपीयर इन FRM फॉर May 2027। May 2027 FRM, अगस्त में या नवंबर में CFA L1। सर बट उसके कारण तो मैं CFA पढ़ नहीं पाऊंगा। अरे यार, FRM का जो पढ़ोगे तो CFA का ही तो पढ़ रहे हो। बिकॉज कॉन्ट्स, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव्स, फिक्स्ड इनकम, उसमें ज्यादा डिटेल्स में FRM में एज कंपेयर टू CFA लेवल 1 में। देर आर 4 टॉपिक्स इन FRM पार्ट 1। ऑफ कोर्स आपको नाम से समझ में नहीं आएगा। फाउंडेशंस, बेसिक्स हो गया रिस्क मैनेजमेंट का, क्वांट्स, तो क्वांट्स पे क्वांट्स है। उसके अलावा FMP एंड VRM, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट एंड वैल्यू एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स, ऐसे बता नहीं पा रहा हूं मतलब। पार्ट 2 में इफ यू सी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, करंट इश्यूज। CFA प्रोग्राम में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ये वाला है, लिख देना CFA प्रोग्राम में ये वाला रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज देयर इन द CFA प्रोग्राम। यू नो समथिंग, 2025 में CFA लेवल 3 में 3 पाथ चालू हुआ, 3 पाथवेज चालू हुआ। वन पाथवे वॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द सेकेंड पाथवे वॉज प्राइवेट मार्केट्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, एंड द थर्ड पाथवे वॉज प्राइवेट वेल्थ। ठीक है ना? जब प्राइवेट मार्केट्स पाथवे चालू हुआ तो द हेड ऑफ CAIA, आपने एक प्रोग्राम सुना होगा CAIA, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक नॉट सो प्रोफेशनल कमेंट किया। व्हाई? बिकॉज दे न्यू दैट द मोमेंट द CFA इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द प्राइवेट मार्केट्स पाथवे, CAIA doesn't have a future. Okay, it doesn't have a future because CFA प्रोग्राम प्राइवेट मार्केट्स पाथवे में बेटर जॉब कर देगा, बेटर सर्विसेज दे देगा एज कंपेयर टू CAIA प्रोग्राम। बट व्हेन इट कम्स टू FRM में CFA इंस्टीट्यूट केवल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में है। इट इज नॉट इनटू मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। इट इज नॉट देयर, इट कैन नॉट बी देयर। ठीक है? तो FRM इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द GARP, द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। Okay, there is no competition to it whatsoever. There might be other risk management programs in the globe, but they don't stand a chance when it comes to FRM. Okay, if we go further,
आपको फीस दिखेगा एफआरएम का। व्हेन यू वांट टू रजिस्टर फॉर एफआरएम, यू हैव टू पे 400 का वन टाइम एनरोलमेंट फी, जो कि पार्ट टू में नहीं लगता है, एंड यू हैव टू पे अर्ली रजिस्ट्रेशन फी ऑफ $600। तो 400 प्लस 600, $1000 एफआरएम पार्ट वन का कॉस्ट है, एफआरएम पार्ट टू का 600। ठीक है, बिकॉज 400 लगता नहीं है। तो पहले 1000 फिर 600। सो यू कैन सी दैट द अमाउंट दैट यू पे टू द इंस्टीट्यूट इज समवेयर अराउंड 1,50,000। ओके, इन अ स्पैन ऑफ वन एंड हाफ ईयर्स, 1.5 साल 2 साल में आप 1.5 लाख रुपया एफआरएम इंस्टीट्यूट को देते हैं। ठीक है, तो पास परसेंटेज एफआरएम पार्ट वन का 47%, एफआरएम पार्ट टू का 10%, बट बिलीव मी मैं उसके बगल में लिखना चाहूंगा 4.7% एंड 5%। क्यों? बिकॉज जो लोग ट्रूली अच्छे से करते हैं वो लोग उतने ही हैं। बाकी सारे जन जो हैं वो जस्ट करने के लिए करते हैं, एंड वो लोग कुछ डिफरेंस नहीं करने वाले एफआरएम करके। ठीक है, डेट्स दिया हुआ है कब कब रजिस्टर करना, आई थिंक दैट स्टुपिडिटी, आई विल नॉट रीड आउट दैट। तो दिस इज द एफआरएम प्रोग्राम। इट्स अ वंडरफुली डिजाइंड प्रोग्राम। यू विल लव इट इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स नंबर्स। अगर आपको नंबर्स पसंद आता है, अग्रेशन पसंद आता है, तो एफआरएम आपको पसंद आना ही है। एंड आई एम स्टार्टिंग एफआरएम आफ्टर 7 years। और जो बोलते हैं ना फाड़ दूंगा, बिलीव मी, फाड़ूंगा तो ऐसा फाड़ूंगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। वीकेंड क्लासेस है सैटरडे संडे। सैटरडे को दो क्लास है, 11 से 1, 2 से 4। संडे को है 11 से 1, 2 से 4। देर आर 4 क्लासेस, यानी कि अपने पढ़ने वाले एवरी वीक 8 आवर्स। एवरी वीक 8 आवर्स स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई से। इट इज स्टार्टिंग ऑन द 18 जुलाई। 8 आवर्स अ वीक, वीकेंड में है। पूरा का पूरा डिजाइंड है कि अगर भाई आपका मंडे टू फ्राइडे ट्यूशन चलता है या आप ऑफिस गोअर पर्सन है, इट इज ब्रिलियंटली डिजाइंड फॉर ऑफिस गोइंग पीपल। ऑल क्लासेस आर लाइव, वीडियो के नॉट बी देयर बिकॉज वीडियो इज नॉट देयर। वीडियो है ही नहीं तो जाएगा कैसे? ऑल क्लासेस आर लाइव। कैलकाटा में फेस टू फेस भी है, बट कैलकाटा में कई बार सैटरडे संडे अगर मैं ट्रैवल करता रहा तो फेस टू फेस उस दिन कैंसिल होगा। ठीक है, तो इन दैट केस कोई कैलकाटा में कर रहा है तो फेस टू फेस आ सकता है, बट कभी कभी वो लाइव ऑनलाइन होगा, फेस टू फेस हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कोई कैलकाटा में कर रहा है तो ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, गाना था, बिलीव मी, एंड आई आई मीन इट। यू विल रिपेंट द फैक्ट दैट यार संजय सा एफआरएम पूरा का पूरा करा रहे थे, ठीक है, ऑफ कोर्स विद हिज टीम, एंड वो एफआरएम आपने छोड़ दिया और उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी बढ़िया होता है, खैर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। ठीक है, बट आपको अलग ही मजा आएगा। इट्स विल ऑल बी विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट, एंड अपने फाड़ने वाले हैं एफआरएम में। बट जिसको एफआरएम ठीक से नहीं करना है, जिसके लिए एफआरएम केवल एक ऐड ऑन चल ऐड कर दिए, वो मत करना। ठीक है, डोंट डू एफआरएम, और एटलीस्ट डोंट डू विथ मी। मेरे से मत करना, देर इज नो नीड। ठीक है, जैसे सीएफए प्रोग्राम में होता है, हर क्लास का ऑडियो समरी जाएगा, हर क्लास के साथ क्वेश्चन जाएंगे, हर क्लास का लेक्चर नोट्स होगा, हर वीकेंड मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टॉपिक का टेस्ट होगा। हर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद there will be a number of full mock tests. So there is no problem whatsoever. The entire CFA pedagogy is carried into FRM in a fresh manner. Okay. Okay. सो अंजुल, इट्स ओवर टू यू। क्यू एंड ए टैब में जो था वो आप हेल्प करके पूछ सकते हैं। आई एम अ लिटिल बिट फैमिश्ड। Yes, sir. So should I share over the list with you? We can, I have listed down the questions and we can like go ahead. Or would you like me to read the questions out loud? Ideally, it should have been the case that you are going through the Q&A tab, and based on the questions you are seeing as to which are the ones which are common, like he's asking this are the same, because unnecessarily if you go through each question there could be multiple times repetition, plus it could be that something that I have spoken very very clearly and the same thing is asked that could be skipped. So Sure, sir. that's the way in which it happens. Okay. So, sir, basically the question that has been coming around is that people who are already doing CFA with you, currently registered for level one, they wanted an idea of as in when should be they starting FRM preparations. I'm answering that in a minute. Before that, in the chat, somebody asked, "Sir, would you be teaching the entire FRM?" FRM will be taught by me 50% and 50% by the student who is the champion when it comes to risk management, who is the champion when it comes to spreadsheet and Excel, whose classes are there on YouTube 3-4 देखने के लिए, who teaches with all skill and all energy, जो energy में ला नहीं सकता हूँ, he is Buddha Dev.
ओके, बुद्धदित्य। सो बुद्धदित्य इज द अदर फैकल्टी विथ मी, यानी क्या होगा, 11 से 1 मैं पढ़ाऊंगा, 2 से 4 बुद्धदित्य पढ़ाएगा। एंड आई चैलेंज एनीबडी, इन केस एनीबडी हैज जरा सा भी डाउट्स ओवर बुद्धदित्य कि सर नहीं आपसे ही पढ़ना था, अगर आपको पसंद नहीं आया कि सर बुद्धदित्य का हम लोग को समझ में नहीं आया बुद्धदित्य सर का, तो इन दैट केस यू टेल मी, आई विल मेक अ रिफंड, ठीक है, विद इन द फर्स्ट 5-7 क्लासेस। ओके, दैट इज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ही विल टीच बेटर देन मी, आई एम श्योर, बिकॉज एक्चुअली हम लोग दोनों ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट मेरे को 4 घंटे पढ़ाने का मैनुअल लेबर मिल नहीं पाएगा। ही विल बी सिटिंग विथ मी इन द क्लास, आई विल बी सिटिंग विथ हिम इन द क्लास, ओके, when FRM is being taught. So I wanted to make it clear. 11 to 1 I am teaching, 2 to 4 he is teaching. ठीक है, and we will fadify the stuff. We will change, bring out a revolution in FRM the way it is pathetically being done in the industry. Yeah. Coming to the question, जो लोग CFA कर रहे हैं मेरे साथ, CFA लेवल 1, मैंने जैसा बोला वो लोग 2 टाइप के लोग हैं। नंबर 1, जो लोग क्लास 12 पास आउट है और जिनका CFA का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर अगस्त या नवंबर में है, होने के बाद भी वो लोग डेफर कर देते हैं। अब डेफर कर नहीं पाएंगे, बढ़िया बात है। वो लोग को रिस्क है कि क्या पता वो लोग फोकस कर पाएंगे क्या, बिकॉज 1.25 साल 1.5 साल का टाइम इंटरवल है। बिगेस्ट रिस्क इज दैट ओनली, इट्स हैपनिंग विद एवरीबडी डे इन एंड डे आउट। और उनको डर लगता है QM में, आधा QM के बाद होता नहीं है। FRM ज्वाइन कर लो, QM के राजा बन जाओगे। FRM ज्वाइन कर लो, अपने से सैटरडे संडे 4-4 घंटा मिलोगे, कहां जाएगा CFA, दोनों का दोनों हेज्ड हो गया। FRM इज बिकमिंग अ रिस्क मैनेजमेंट टूल टू यू। स्टार्ट FRM फ्रॉम द 18th of July with me, sit for FRM in May, sit for CFA in August or November. It's a brilliant opportunity. You come out of your graduation के बाद आपका FRM कंप्लीट हो चुका है, CFA का 2 लेवल्स हो चुका है, you are absorbed by the industry, you work for 2 years and then you decide you want to go for your masters or not. Okay, in case I said fast, repeat कर रहा हूं, start FRM right now with me 18 जुलाई से, एंड मई में आप FRM पार्ट 1 दो, CFA लेवल 1 आप अगस्त में या नवंबर में दो, और उसके बाद जाके आप FRM कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन के पहले, CFA का लेवल 2 तक कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन 3 साल के पहले, और उसके बाद आप सीधा का सीधा इंडस्ट्री को अप्रोच करो, 2 साल का जॉब करो, उसके साथ CFA कंप्लीट हुआ आपका, एंड यू हैव योर लाइफ सेट। देयर इज नो रिस्क एट ऑल कि सर इस पाथ में कोई रिस्क है क्या, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एक रिस्क है कि आप डिसओरिएंटेड हो गए और क्लास में आना बंद कर दिए, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई कैन मोटिवेट यू, आई कैन आस्क यू टू कम, बट यू हैव टू अल्टीमेटली स्टडी, ठीक है। तो और जो लोग CFA 1 साल बाद नहीं अभी देंगे, 6 महीने में, 3 महीने में वगैरह, वो लोग ऑब्वियसली FRM अभी ज्वाइन नहीं करें। किसी का अगर 3 मंथ्स बाद CFA है, अगस्त में नवंबर में है, तो इन दैट केस वो FRM ज्वाइन नहीं करें। इनफैक्ट जिसका नवंबर में है और जो परेशान है QM से, मैं QM से ही स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नवंबर में और QM से परेशान है, आ जाओ, तुम्हारा QM यहां पे धो देंगे, ठीक है। तो यू कैन डू FRM स्लोली, अपीयर फॉर इट इन May 27। जो लोग CFA लेवल 2 के स्टूडेंट है या लेवल 3 के स्टूडेंट है, सी वेर आर यू सिटिंग फॉर योर CFA। ओके, आप नवंबर में May 27 कब बैठ रहे हो, अकॉर्डिंगली डिजाइन, स्पेस इट आउट। खाना खाते समय एक खाने को डाइजेस्ट होने के बाद दूसरा खाना पड़ता है, ऑल्दो मैं वैसे खाता नहीं हूं, ठीक है, बट अदरवाइज यू स्पेस इट आउट, ठीक है। तो यू हैव टू स्पेस आउट द थिंग्स। आप CA कर रहे हो तो लुक एट द फैक्ट दैट आपका कब एग्जामिनेशन ड्यू होगा, अकॉर्डिंगली FRM कब देंगे, तो हैव टू स्पेस इट आउट, प्लान इट अकॉर्डिंगली। आवर काउंसलर्स आर देयर, दे विल प्लान इट फॉर यू, पूरा टाइम चार्ट बना देंगे, कब CFA कब FRM देना चाहिए। आओ तो सही, ठीक है ना। रीच आउट योर हैंड, हेल्प मी लेट यू टेक हायर। चलो The नेक्स्ट क्वेश्चन। another question that keeps coming is that Excel looks very difficult, and is FRM too maths heavy FRM compared to FRM CFA? एफ जब तक अपने कॉपी पेन पे रहेंगे ना, कॉपी पेन पे, जब तक कॉपी पेन पे रहेंगे ना, सब मेरे को तो कॉपी पेन पे ही समझ में आता है। द पॉइंट इज दैट क्या तुम्हारे लाइफ का पर्पस है कॉपी पेन पे क्वेश्चन सॉल्व करना? मतलब तुमको लगता है लाइफ ऐसे चलने वाली है फ्यूचर में? एक्सेल मैंने अभी दिखाया, बहुत फास्ट दिखाया था, बिकॉज मेरे पास कहाँ समय था। आप उसके बेसिस पे अगर जज कर रहे हो एक्सेल टफ लगता है, वो रॉन्ग है। एक्सेल की क्लासेस FRM के साथ फ्री देंगे, फ्री। एक्सेल की क्लासेस FRM के साथ फ्री होगी, डोंट हैव टू वरी। तो आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सेल की क्लास विल बी गिवन अलोंग विद FRM, बट एक्सेल टफ नहीं है। एक्सेल इज वेरी वेरी सिंपल। माने आप गलत सोच रहे हो, बिलीव मी, इट इज द इजीएस्ट थिंग। और एक बार आपका हाथ बैठा, यू विल लव इट, ठीक है। माने थिंग्स विच कैन नॉट बी डन ऑन पेन एंड पेपर, जो इमेजिनेशन पे होता है, दे कुड बी मैनिफेस्टेड ऑन एक्सेल।
तो आई थिंक आपका एकदम रॉन्ग धारणा है। मतलब काश आप मेरे बगल में ही बैठे होते, आई वुड हैव टोल्ड यू डेट आप गलत सोच रहे हो। और ये टिपिकली होता है कुछ स्टूडेंट्स के साथ 11 12 के, जिनको ऐसा डर लगता है। डोंट डू दिस विथ यू दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ इफ यू आर थिंकिंग इन दैट मैनर। डोंट डू इट प्लीज। So another question is coming from working professionals that do you think that they will be able to manage it or do it along with their work hours? Yeah, so let's understand. I am going to teach for May 27. I am not teaching for November. I am teaching for May 27 clear cut. कोई भी चीज का फर्स्ट लेवल, फर्स्ट पार्ट ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में योर लाइफस्टाइल चेंजेस, किस तरह से एग्जामिनेशन है, किस तरह से एग्जामिनेशन नहीं है, सारा का अडेप्टेशन होता है। फिर पार्ट टू इजी हो जाता है, ऑल्दो पार्ट टू वैसे टफ है बट इट बिकम्स इजी। सीएफए में भी यही होता है। तो पार्ट वन में अपने पास टोटल मिला के करीब 11 मंथ्स है। वी आर हैविंग सम 10.5 11 months फॉर FRM part 1. We will complete the syllabus with you by Feb and mid-March. Feb and mid-March. I request you, if you join me, please join the Platinum Plus package, not the Gold package. Because Platinum Plus package में February में जब सिलेबस एंड होगा उसके बाद पूरा का पूरा रिवीजन क्लासेस लूंगा, जो पूरा रिवाइज करा दूंगा। बोलेगा ना मैं मिस हो गया था सर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पूरा याद मैं करवा दूंगा। I think working professionals should understand that they have to do 8 hours of classes. If they are doing it recorded, तो maybe 7 hours या 6.5 hours में हो जाएगा at faster speed. So they have to do 8 hours of classes and they have to study by themselves individually. करीब 4-5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो I am asking around 12 to 15 hours per week. अब आप उसको डिवाइड कर दो, 12 to 15 hours पर वीक में 8 hours तो मेरे साथ ही हो गया, जिसमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता है, और बाकी आपको 5-6 घंटे जो है वीक में पढ़ने हैं। तो अगर वो नहीं निकाल पाते हो तो नो, इट्स नॉट वर्थ इट। वी आर टॉकिंग अबाउट करियर बिल्डिंग। इफ दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर डजंट कम, तो इन दैट केस व्हाट सेंस इज इट? Yes, उसके sir. अलावा I उसके think उसके अलावा अपने मॉक टेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट में आपका कैसा स्कोर आता है उसके बेसिस पे भी एडवाइज यू व्हेन टू टेक द एग्जामिनेशन और नॉट। वी आर वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग किसका पैसा नहीं डूबे। ठीक है, किसी का पैसा नहीं डूबे बोलने वाला था, आपका पैसा इज इक्वल टू मेरा पैसा खराब लग जाता। अरे बोलना चाह रहा हूँ कि आई हैव अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट जस्ट एज आई वुड हैव प्रोटेक्टेड माई मनी, आई विल प्रोटेक्ट योर मनी। perfect, perfect. Thank you so much, sir. I think, guys, that answers pretty much of all the questions that were common concerns. जो आपके individual concerns है about your, specialized specific degrees and how do you fit into these roles, or any other questions you have about FRM, our counselors will definitely take it up. I would, sir has basically given us a very good technical understanding and the walkthrough of FRM. एक दो Sir, चीज बोलना था, मैं भूल गया। जी जी. FRM does not require mathematics. Please remember, FRM is not actuarial science. It doesn't require any mathematics at all. मेरे को कोई मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने कितने बढ़िया से इज्जत दिए थे मैथमेटिशियंस को शुरू में, आपको याद होगा। ठीक है, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट सुबेर बजाज, सो डोंट कम टू दिस थिंग यार मेरा मैथ्स वीक है। आई डोंट रिक्वायर मैथ्स इन FRM। नो APGP, नो dy/dx, नो इंटीग्रेशन, नो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना? ये संजू। Yes, sir. Another question that I just remembered was people are asking, when are you bringing us level 2 classes? We are waiting for that. When are you bringing us level 2 classes? FR, Oh, FRM FRM level part 2. 2. नहीं, Yes. one thing at a time. I know my abilities in terms of time investment, और मैं ओवर कमिट और अनड्यू प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ। FRM पार्ट 1 May 27 के लिए होगा, उसके बाद मैं FRM पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। तो आई स्टार्ट FRM पार्ट 2 मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम March और April नेक्स्ट ईयर, ओके, फॉर द November term. That's the plan. Great, great. Thank you so much, Hmm. sir. And rest of the questions, guys, you can get in touch with our counselors. Sir, anything else? नो नो, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड संडे को मेरे को 1 घंटे 1.5 घंटे देना, दैट इट सेल्फ इज अ ग्रेट रिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स मी। इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू डू एनी क्लासेस विद मी और नॉट, डजेंट मैटर। बिलीव मी, एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बन गई है। मेरे वेल विशेस आपके साथ रहेंगे। आप खुश रहो, तरक्की करो, दैट्स व्हाट आई विश। CFA, FRM, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनालिस्ट टैक करो नहीं करो, बिलीव मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। ठीक है, दैट इज नॉट हाउ आई लुक एट थिंग्स। There are various other
bigger aspects in my life waiting for me, okay, which are fructifying. So these are things which I say because I know that they shape careers. When I meet a Sumer Bajaj in New York City and I remember क्या था उसका हाल जब वो कैलकाटा में था, I tend to feel that ऐसे बहुत सारे सुमेर बजाज और बनने चाहिए, ठीक है, तो इस कारण से रहा नहीं जाता है, एंड आई एम inclined and I'm always addicted to motivating students and guiding them as to what should they do in their life. Okay, so that is something that is really very close to my heart. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.